Okay. So in today's class, next question is that the inverse of this particular matrix. So you already know that inverse is the of any matrix is given by A inverse is equal to adjoint of A divided by determinant of A, right? So you can easily find out the inverse of any particular matrix by this one. But second concept is that I already discussed in previous class. It is one property or the one shortcut. If we multiply and A inverse, then we will find the identity matrix. And order of the identity matrix is the order of this particular matrix A, right? तो अब आपको सपोज ये मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो यू मल्टीप्लाई द बाय यूजिंग दिस option A, B, C, and D. If you multiply, suppose S is the matrix, and if you find out S inverse, so multiply S into S inverse, then you will find identity matrix, right? So you will check uh, one by one option, right? If you multiply that this particular A option with S matrix, you multiply first row, first column, right? If you multiply first row, first column, then you will find 1 into 1, 1, minus 1 to the 0 and 0. What is answer? The option is 1, right? Then you multiply first row and second column. So 1 into 0, 0, 0 into minus 1, 0, or 1 into 1, 0. Then this element is 0. Then first row, third column, right? Then equal to 0. Then second row, third column, that is 1, right? But in the IT matrix, of 3 cross 3 order is 1 0 0 0 0 1 1 0 and 0 0 1, right? And this particular option is not correct, right? Okay. Then we will go for the second option. First row, first column, then 1 into 1 0 minus 1 into minus 1, it is 1. That is equal to 1, right? That means this element must be equal to 1. Then first row, second column. So 1 minus 1, 0, because 1 into 1, 1, minus 1 into minus 1, 0 and 0. This element must be 0. Then first row, third column. That is 1 minus 1 is equal to 0. Right? And this option must be right. Then second row, first column. If you multiply second row, first column, the 0 into 1, 0, minus 1 into 1, minus 1, and 1 into 1 is 0. Like in second row, first column, second column, and 1 into minus 1, 0, right? Then this element must be equal to 1. The second option is also correct. If you go for the third option, you multiply first row and first column, right? If you multiply first row of S and second first column of the S inverse, so 2 minus 2, 2 plus 2, that is 1 means 4. This element must be equal to, right? That means this particular matrix is not correct, right? Then we go for the third option. We multiply third option, then first row, first column, then 1 by 2 plus 1 by 2, that is 1. Then first row, second column, 1 by 2 minus 1 by 2, 0. Like in third column, minus 1 by 2 plus 1 by 2, that is 0, right? If you multiply first, second row, first column, that is 0. You multiply the second row, second column, then 1 by 2 plus 1 by 2, that is 1. And we multiply the second row, first column. So easily we can say that then this particular matrix is correct, right? So what is the concept of this shortcut of this particular? If you find out the matrix, you multiply S and S inverse, and you find the identity matrix, right? Means fourth option is correct. What is the alternate option? You will find the adjoint of A and find out the determinant of A and divide the determinant of A by and adjoint of A, then you will find the inverse of A, right? Is the first concept, right? First method. So either you will apply the first method or second method, until unless you have practiced by using this concept, then you will easily find out the option very easily, right? This is the easier method. Any doubt in this question? चैट बॉक्स में आपका ओके
अगर आपको कोई डाउट है तो आप सिंपली माइक को अनम्यूट करके आप आंसर कर सकते, आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, द मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय एंड फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, राइट। You have to find out determinant of A inverse, right? And what is the method? The first method is you will find the A inverse. A inverse is the adjoint of A divided by determinant of A, right? This concept is you will already known about this concept, but second you must apply the property. The second method. What is the property? If you will find the determinant of A inverse, then the formula is determinant of A inverse is 1 divided by determinant of A. Okay? Then you simply find out the determinant of A, then you will reciprocal of this particular value, you will find the determinant of A. This is the property. I already apply this property, right? First you go through all this property, and you will, once you remember all this property, then you simply answer this question, right? So simply you will find the A, determinant of A. How you will find determinant of A? First will first row and first column. And what is the value of 4 into 1? So 1 into 4 minus 0. Then you will apply the alternate sign, plus minus plus. Then apply the negative sign, just minus 2. Second, first row, second column, right? 0 into 1, 0 minus 0, 0, 0. Then plus 3. Second, third row, first column, 0 minus 0 is 0. And what is the value is? Value is 4, right? Ultimately, this is not the answer, but we have to find out the A inverse, determinant of A inverse. The answer is 1 by 4 equal to 0.25. So this is the numerical answer type question. That is, we have to type or the on the keyboard or the virtual keypad, then 0.25. So what is the answer is 0.25. This question this question asked in GATE 2018 in mechanical branch. It is conducted by IT board. Any doubt in this question? No, sir. Then again, this particular question is asked in electrical branch in GATE 1998. This is the same question. That is the assignment for you, right? Then this question will easily you will apply the concept. That is A into A inverse is antimatter, right? Approximately 20 to 25 questions already asked in GATE. Uh, if you apply this concept, you easily calculate all these questions, right? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है, तो आप इजीली एक कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखें, ठीक है। तो ये वाला जो है अब इजीली आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें सेम हियर यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, सेम यहाँ पर भी इनवर्स पूछा है, तो यहाँ पर भी सेम अप्लाई कर सकते हो, ए इंटू ए इनवर्स, राइट, इक्वल टू एन। सपोज मैं दोबारा बताया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किया 1 आया, फर्स्ट रो से फर्स्ट मल्टीप्लाई किया मैंने 0 आया, फर्स्ट रो से मैंने, ये शायद ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ। 81 इज रिलेटेड टू द इस क्वेश्चन ऑलरेडी सेम, राइट। तो ये भी आप इजीली आप कर सकते हो। तो कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। This question is asked in electronics branch in GATE 2014 is conducted by the IIT Kharagpur, and in our 2022 is already conducted by the IIT Guwahati, right? तो इस बार भी IIT गुवाहाटी कंडक्ट करा रही है, सॉरी IIT खड़गपुर कंडक्ट कर रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस वाले क्वेश्चन में कोई आइडिया है कि ए रियल मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए स्क्वायर इक्वल टू आई। मीन्स कोई मैट्रिक्स ए है, उसको मैं अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो इफ द आई इज द 4x4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन द पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो आपको इसकी आइगन वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू। एनी आइडिया अबाउट इस क्वेश्चन को कोई कर सकता है?
आइगन वैल्यू का मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। बस आपको मैं देखना चाहता हूँ कि आपको इसमें कुछ माइंड लग रहा कि नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ माइंड में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे हो सकता है, कुछ एनी आइडिया? आप माइक अनम्यूट करके जी बता सकते हो कोई आइडिया? 1। हाँ बताइए। यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज में लेना है, क्योंकि इसमें आइगन वैल्यू की बात कर रहे हैं। इफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इक्वल टू आई इज गिवन, then this eigenvalues of a square must be equal to eigenvalues of, right? this concept you will must know कि अगर वो मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके आइगन वैल्यूज भी इक्वल होगी, राइट? अब आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी मैट्रिक्स की क्या होती है? आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी मैट्रिक्स इज 1, राइट? और अब आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर पूछा है, तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1। और आइगन वैल्यू ए स्क्वायर इक्वल टू अगर 1 है तो इसकी पॉजिटिव आइगन वैल्यू पूछ रहा है, तो पॉजिटिव आइगन वैल्यू का मतलब कौन सी वैल्यू होगी? एक वो एंटी मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 की, अगर मैं बात करूँ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0, ये एंटी मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है? तो कभी भी अपन किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज की बात करते हैं, तो आइगन वैल्यू जिसकी जो है वो 1 आती है, राइट? अगर मैं बात करूँ, अगर जिनका मैं सम की बात करूँ, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 प्लस लेमडा 4, सबका सम क्या होगा? 4 होगा, राइट? और इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करूँ तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। इसका मतलब सारी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? 1 ही आएगा, राइट? अगर ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू जब तुमको ए की फाइंड करनी है, तो सिंपली आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया था कि अगर ए की आइगन वैल्यूज लेमडा है, तो एट द पावर के की आइगन वैल्यूज क्या होती है? लेमडा की पावर के, ठीक है? ये आप जानते हो। then this concept you will apply this concept in this particular question, then a स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या होंगी? लेमडा स्क्वायर, राइट? तो आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इज लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो लेमडा कितना आ जाएगा? प्लस माइनस, राइट? और in this particular question he's asking about the positive eigenvalue. So what is the positive eigenvalue? So I apply this particular concept. If eigenvalue of a is lambda, then eigenvalue of a to the power k is lambda to the power k, right? So eigenvalue of a square is lambda square, right? And he is asking about the eigenvalue of a. And what is the eigenvalue of a is? We are assuming the lambda. So he's asking about the eigenvalue of a means lambda. So what is the value of lambda? It's plus minus 1. But in this particular question, he is asking about the positive eigenvalue. So what is the answer? Answer is 1. It's very good question. Very good question is already asked in electronics class. तो आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट को किसी भी तरीके से घुमा के फिरा के कैसे भी करके आपको दे सकते हैं, तो आपको जो है प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? आप चैट बॉक्स में लिखा करो, वरना मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है। चैट बॉक्स के अंदर अगर अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा, चैट बॉक्स के अंदर 26 स्टूडेंट है और अभी तक सिर्फ मेरे पास 1 या 2 का आंसर आ रहा है। सबका आंसर आएगा तभी अटेंडेंस लगाऊंगा। Then move to the next question. This question is asked in 8 2016 in computer science branch, and this particular gate is conducted by the IC. And suppose that eigenvalues of A are 1 to 4. आपको क्या गिवन है? आइगन वैल्यूज ऑफ ए गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है? आइगन वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स टू द ट्रांसपोज, राइट? दैट मींस आइगन वैल्यूज ऑफ A is given that are 1 2 and 4, right? And he is asking about the determinant of
A inverse to the power, right? एनी इस क्वेश्चन के लिए अगर कोई बता सकता है कि हाउ वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टी आपको पता है ऑलरेडी, प्रॉपर्टी ने बता दिया, क्योंकि आपको देखना चाह रहा हूँ कि आपका माइंड कहाँ तक जा रहा है। ये लगभग 27 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर। इस क्वेश्चन को कोई सोल्व कर सकता है? कोई भी सोल्व नहीं कर सकता? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको। इफ any matrix A is given and determinant is possible, then if you are finding out the determinant of A transpose, that is equal to the determinant of A. That is the property. That means if we are talking about the A inverse transpose, that is equal to nothing but the determinant of A inverse. And if the determinant of A inverse, again the property already uh, I already told in the previous question. If the determinant of A inverse equal to 1 upon determinant of A, right? क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? अब अपने प्रॉपर्टी आपको पता है कि इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ A is lambda, then आइगन वैल्यूज ऑफ A to the power k is lambda to the power k, right? Clear? And if you are talking about the A inverse, so what is the eigen values? Lambda की power minus. This is the property. And how will this is asking about the determinant of A inverse. It is 1 upon determinant of. And what is the determinant of A? Determinant of A is nothing but the product of the eigenvalues. Lambda 1, lambda 2, and lambda 3. Right? And what is the determinant of A? Lambda 1 is 2, sorry 1, 2 and 4. Multiplies 8. Right? Then आपके पास determinant of A आ गया. This is not the answer. What is the answer? 1 by determinant of A. 1 by 8. It is 0.1. Again, I am repeating the concept. In this particular question, that eigenvalues of A is given 1 to 4. That means lambda 1, lambda 2, lambda 3 are given. And after that, he is asking about the determinant of A transpose of A inverse, right? We already know about this concept that determinant of A transpose equal to determinant of A. That means determinant of A inverse transpose is nothing but the you will find the determinant of A inverse, right? इस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी अपन ने देख रखा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होता है? इट इज 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट? और किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नथिंग बट द प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू। ये भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बता रखी है, राइट? और आइगन वैल्यूज ऑलरेडी आपको गिवन है 1 to 4, तो 1 into 2 into 4 कितना आ गया? 8 आ गया। तो 1/8 ये आपको पूछा था, राइट? तो 1/8 नथिंग बट द 0.125। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें आप आंसर क्या लिखोगे? 0.125। तो इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है? नंबर 1 प्रॉपर्टी एंड नंबर 2 प्रॉपर्टी एंड नंबर 3 प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टीज आर यूज। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? Now move to the next question. What is the eigenvalues of this particular matrix, right? So if we are finding out the eigenvalues, so how we will find the eigenvalues? That there is a different method, but I will apply a short trick. Then concept is if there is a 2 cross 2 matrix, then there are 2 eigenvalues. So sum of eigenvalues is the trace of A. You already know that. That is trace of A is nothing but the sum of the diagonal element. So what is the sum of diagonal element? 0 plus 0. It is 0. So sum of the eigenvalues are 0. That means this option cancel out and this option is cancelled out. So there are 2 options are remaining here. Second concept, so the product of eigenvalues are lambda 1, lambda 2 is nothing but the determinant of A. And what is the determinant of A is 0 plus 1. That is 1. It means if we multiply the lambda 1 and lambda 2,
then what will here, that is 1. So if we are checking the option number A, so we multiply the iota and minus iota, that is 1, right? Iota, that is minus iota square, it is minus 1, minus 1 to minus 1 is plus 1, right? That means option A is correct, right? This is the way how we check the option or how we will find the eigenvalue. Any doubt in this question? No, sir. Okay. Next question again. Then eigenvalues of two cos matrix X are minus 1 and minus 2. That means here eigenvalues are given. That means lambda 1 and lambda 2. What is the value of lambda 1 and lambda 2? Is minus 2 and minus 3. Now he is asking about the eigenvalues of matrix is X plus I inverse. That is number 1. And number 2 he is asking about X plus 5 matrix, right? Then you already know that the eigenvalues of identity matrix is 1, right? Then again you apply this concept. What is the property? How we will find the uh, eigenvalues of any inverse of the matrix? How we will find? यहाँ पर आपको lambda 1 lambda 2 की वैल्यू दे रखी है -2 और -3. आप कैसे फाइंड करोगे? कोई बता सकता है? ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ आपको, इसे मैं आपको दोबारा पूछ रहा हूँ. जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि हाँ बताइए. -2 0 0 -3 ऐसे. -2 -3 दे रखा है. अगर आपको x प्लस आई इनवर्स की आपको आइगन वैल्यू बतानी है, कैसे बताओगे? अभी जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, हाउ यू विल फाइंड. किसी को नहीं पता. जस्ट अभी 2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया. इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज लैम्डा, then eigenvalues of a to the power k is lambda to the power k. Then eigenvalues of a inverse is lambda to the power -1, it is 1 by lambda. Eigenvalue of a inverse is 1 by lambda 1 1 by lambda 2. Already I already told you in previous class, and also in this class I will told 2 or 3 times. Then you memorize this concept and apply this in this particular question. Then what is the eigenvalue of x plus inverse? That is x plus I inverse, right? And if you are applying this, then 1 divided by x in means x, we apply the lambda, right? So what is the value of lambda? -2 plus 1. If we already know that the eigenvalues of is iota identity matrix is 1, right? So what is the value of this? 1 divided by -2. That is minus, right? Then again apply this concept in this particular matrix x plus 5 5. So what is the value of x? -2 plus 5 into 1. So what is the value of -2 plus 5? That is 3. And he is asking about the multiplication. So we multiply the lambda 1 lambda 2. So -1 into 3. What is the value? Is -3. So first value of the eigenvalues of this given matrix is -1. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो कि दोबारा रिपीट हुआ है कौन सा. इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. सर इसमें x की जगह -2 लिया है, -3 नहीं ले सकते? लेंगे ना, अभी लेंगे. अभी तो मैंने जस्ट एक बताया. मैंने जस्ट अभी lambda 1 के लिए सोल्व किया है, फिर आपको lambda 2 के लिए सोल्व करना है. मैंने -2 या lambda 1 के लिए सोल्व किया, राइट? अगेन अपन lambda इक्वल टू -3 के लिए सोल्व करते हैं. lambda इक्वल टू -3. अब आप इजीली आप कर सकते हो. तो 1, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? -3 प्लस 1 इंटू -3 दैट इज x प्लस 5 इंटू 1. तो ये प्रोडक्ट फॉर्म में है. तो 1 अपॉन -2 into -3 plus 5, that is 2. So what is the value of -1, right? So for lambda equal to -3, what is the value of eigenvalue? -1. And for lambda equal to -2, value is here -3. So answer is -1 and -3. So what is the option? In option C is
Option C is correct. So this particular question asked in GATE 2019 instrumentation drive is conducted by ITO. ये सारे क्वेश्चंस आइगन वैल्यूज के ऊपर है। कम से कम यहाँ पर जो मैंने पीडीएफ फाइल आपको अपलोड की है उसमें 80 से 90 क्वेश्चंस आइगन वैल्यूज के ऊपर है। आप इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ तक कोई डाउट आपको? चैट बॉक्स में फटाफट आप रेस्पॉन्स दिया करें। Now move to the next question. This question is asked in GATE 2016 electronics branch. A matrix is given with order of 4 cross 4, and he's given that determinant of A is 100 and trace of A is 40. What is the value of mode of A minus B? ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। मुझे इसका जो है मेथड आपसे जानना है कि आप कैसे करोगे। सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज हो, कुछ भी नहीं क्वेश्चन। एनीवन? इस तरीके से आप रेस्पॉन्ड करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में फिर उसी तरह से फिर आपको पढ़ा पाऊंगा। ये आपको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप मेहनत करके आंसर दो। आप बताइए ये क्वेश्चन कैसे करोगे? मेरे को आइडिया जानना है, आंसर नहीं पूछना आपसे। एक भी फ्रेंड नहीं। ट्रेस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। हाँ, ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या है वही पूछना चाह रहा हूँ। क्या है? Sum of diagonal elements. Sum of diagonal element. Very good. What is the property of determinant of A? इन्हें कम से कम 6 से 7 बार रिपीट किया है हर क्वेश्चन में। What is the property of determinant of A? How we will find determinant of A when eigenvalues are given? भाई ये चीज मैं 6 से 7 रिपीट कर चुका हूँ, फटाफट बताइए मुझे। जितनी प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी सबके सब याद होनी चाहिए। मैं एक एक को माई कन्वर्ट करके पूछूंगा, उसी की टेंडेंस लगाऊंगा जो बता पाएगा। जितनी प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में बताई है वो सारी की सारी आपको याद करनी है, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ये मैंने आज भी रिपीट किया है दोबारा, कम से कम 3 से 4 हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। तो गिवन द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 100, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 100, so determinant of A is nothing but the 100. Determinant of A is nothing but the multiply the eigenvalue, right? But in this particular question, he's not asking about the eigenvalue. So you will apply the concept of how you will calculate the determinant of 4 cross 4 matrix, and easily you will find the determinant of. अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे ये मैं बता चुका हूँ। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करोगे? अभी तक आपने 3 क्रॉस 3 का ही किया है। 4 क्रॉस 4 का मैं मेथड बता चुका हूँ। कैसे फाइंड करोगे 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का इनवर्स? जसवंत बताओ आप कैसे फाइंड करोगे? आपका माइक अनम्यूट किए, बताइए मुझे कैसे फाइंड करोगे 4 क्रॉस 4 क्रॉस का जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करोगे? जसवंत अपसेंट। करिश्मा आप बताओ कैसे फाइंड करोगे? हेलो सर फर्स्ट रो या कॉलम तो को आपसे first column आप की row। एक मिनट जसवंत, आपसे मैं कंटिन्यूस आपको बोल रहा हूँ, तब रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। क्या सर? आपको कंटिन्यूस में पूछ रहा हूँ, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। आप बताओ कैसे फाइंड करोगे? नहीं पता। आप कृष्णा बताओ। सर ये फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स है ना, मतलब उनको जीरो करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को जीरो करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं अपन।
और कोई एनीवन? ये आपको जो मैंने पढ़ाया है वो किसी एक भी स्टूडेंट ने नहीं पढ़ाया आई थिंक, मुझे 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 जो लग रहा है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है वो आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना क्लास का। एक भी स्टूडेंट नहीं बता पा रहा है कि 4 का जो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। और कोई क्लास में? तो इस तरीके से नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। सर इसका हाँ, ए इनवर्स निकाल के फिर 1/, उससे फॉर्मूले से कर सकते हैं सर। मैंने ए इनवर्स पूछा ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपसे पूछा कि डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ए इनवर्स तो कहाँ चलेगा? तो उसका आगे 1/8 डिटर्मिनेंट ही तो होता है ना। नहीं, नहीं। तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आपको पढ़ना है गेट क्लासेस तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर देना पड़ेगा और तैयारी करनी पड़ेगी। वरना मैं इसके लिए नहीं हूँ कि मैंने पढ़ा दिया और आपने सुन लिया काम कर दिया, ये काम नहीं चलने वाला। अगर क्लास में आ रहे हो तो जो मैंने बताया है तो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये फर्स्ट जो कॉलम जो एलिमेंट है इसको अपन क्या करते हैं 1 बनाते हैं, ठीक है। और बाकी आइदर फर्स्ट रो के एलिमेंट 0 हो जाए या फिर इसके एलिमेंट जो है फर्स्ट रो के एलिमेंट या 0 हो जाए या फिर फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जो है 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी एलिमेंट ए को पकड़ लूँ तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए या फिर ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ये तो आपको पता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है उस पर्टिकुलर रो में या कॉलम में एलिमेंट अगर 0 हो रहे हो तो उसको आप क्रॉस कर दो, राइट। जिस तरीके से आप यहाँ पे इस एलिमेंट को अगर आप पकड़ते हो तो इस एलिमेंट को मैं पकड़ता हूँ तो इस पर्टिकुलर कॉलम में सारे एलिमेंट 0 है, राइट। तो आपको क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में कॉलम और रोज दोनों को आपको हटा देना। जिस प्रकार से आपने इस कॉलम एंटर को 1 बनाया था और ये रो और कॉलम आपने हटा दिया था, फिर आपने क्या कैलकुलेट किया था, डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया था। इसी तरीके से किसी भी एक एलिमेंट को आप पकड़ लो और इसका अगर रो या कॉलम के एलिमेंट्स अगर 0 हो रहे हो तो उसके पर्टिकुलर रो और कॉलम को आप हटा दो। ये इस पर्टिकुलर कॉलम को एंट्री 0 हो रही है, इसको आपने पकड़ा और इसका जो रोज एंड कॉलम इसको मैंने हटा दिया, राइट। अब आपके सामने इजीली 3x3 की मैट्रिक्स बन चुकी है, राइट। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए 0 0 3 2 0 and 7 4 3, right। एंड सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ a इंटू 2b माइनस 0, राइट। उसके बाद में माइनस 3 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट को मैंने क्या बना दिया, 1 बना दिया, राइट। तो इसका आ जाएगा -3 0 माइनस 0 एंड +7 0 माइनस 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। 2ab आ गया एंड मल्टीप्लाई विथ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। एलिमेंट कितना है 5, दिस एलिमेंट मल्टीप्लाई विथ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, so this is the 10. This is the new concept how we will find the determinant of 4 cross 4 matrix, right। एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि इसको 1 बना लो और बाकी एलिमेंट 0 कर दो। सेकंड मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया किसी एलिमेंट को ऐसा पकड़ लो कि जिसके रोज या कॉलम में 0 एंट्री जोड़ दो। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में 0 एंट्रीज है, इसको मैंने हटाया और इस पर्टिकुलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या है 10 EB। तो 10 EB क्या है, इट इज 100। तो यहाँ पर आपके सामने एक इक्वेशन आ गई, ए बी इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। एक कंडीशन से एक इक्वेशन आ गई, राइट। तो सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, ट्रेस ऑफ ए। तो आपको सेकंड कंडीशन आपको गिवन है ट्रेस ऑफ ए, कितना गिवन है 40। तो ट्रेस ऑफ ए नथिंग बट द सम ऑफ द आइगन वैल्यू, तो सॉरी सम ऑफ द कॉलम एंट्री, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट 1a + 5 + 2 + 3 इक्वल टू 40। व्हाट इज द a + b,
a plus b equal to 14 minus 7, which is 7. So there are two equations, two unknown, ab equal to 10 and ab plus equal to 5. So either a and we did not know that what is the value of a and b, either 2 or 5, right? Either a is equal to 2 or a equal to 5. When a is equal to 2, then b equal to 5. When a equal to 5, then b equal to 2, right? And he is asking about the a minus b. Suppose first condition is a equal to 2. What is the answer? 2 minus 5 equal to 3. When a equal to 5, then 5 minus 2. So ultimately, what is the value of mod of a minus b? Is 3. So answer of this particular question is. So this is the another concept how we will find the determinant of matrix and apply the concept. There are two concepts applied. There is the first concept and the second. इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. आगे बढ़े. Next is consider this matrix. The matrix A is given. Its eigenvalues are 1, minus 1, minus 3. That means lambda 1, lambda 2, and lambda 3 are given. Lambda 1, lambda 2, and lambda 3 are given. It are 1, minus 1, and it's asking about the trace of a cube minus 3a square. ये तो बता सकते हो. How we will find the trace of a cube minus 3a square? Anyone? Mic unmute. किसको पता है तो बताइए. सर ए क्यूब निकालना पड़ेगा. a cube निकालना पड़ेगा. अच्छा. फिर और 3a स्क्वायर भी एज इट इज. उसके बाद में इनका डायगोनल ओनली डायगोनल ऐड कर सकते हैं. बिल्कुल सही है शुभम, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है. बट इतना अपन करना नहीं चाहते. जो आप बिल्कुल कह रहे हो कंसेप्ट इज वेरी वेरी गुड. मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूँ. बट इस कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने में आप पहले ए निकालोगे, ए गिवन है, ए स्क्वायर निकालोगे, फिर ए क्यूब निकालोगे, फिर ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर निकालोगे, राइट. फिर उनका सम करोगे. तो मैं इतना नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सीधा प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ. So you can apply the property. I am asking about the how you will apply the property on this particular question. किस तरीके से अप्लाई करोगे? ये मैं हर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी आ रही है. हर क्वेश्चन में, हर दूसरे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी है. अगर मैं आपको पूछता है कि मुझे ए क्यूब की आइगन वैल्यू चाहिए तो कैसे फाइंड करोगे आप? सर इसमें सम ओनली डायगोनल हैं. लैम्डा 1 लैम्डा 2 आइगन वैल्यूज को प्लस कर देंगे. इनको क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे. लैम्डा 1 क्यूब, लैम्डा 2 क्यूब, यही होगा. ये तो मैंने आपको बताया. तो ए क्यूब की अगर आइगन वैल्यू मुझे चाहिए तो क्या क्या आएंगी? 1 का क्यूब 1, -1 का क्यूब -1 और 3 का क्यूब 20, राइट. इसी तरीके से मुझे अगर ए स्क्वायर की आगे वैल्यू चाहिए तो ए स्क्वायर की आगे वैल्यू कितनी आएंगी? 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर इज 1 एंड 3 स्क्वायर इज 9. तो मल्टीप्लाई कर दो अगर -3 ए स्क्वायर से, तो -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो -3 एंड -20, राइट. एक आपके सामने ए क्यूब की आगे वैल्यू जाएगी, -3 स्क्वायर की आगे वैल्यू जाएगी. दोनों का क्या कर दो आप? सम कर दो. ये तो पूछा है इसमें. इसकी ट्रेस पूछा है. ट्रेस में क्या करते हो आप? आगे वैल्यूज का सम करते हो. तो यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इज द ट्रेस ऑफ ए इज व्हाट? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2. एंड ट्रेस ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ट्रेस ऑफ ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर? आइगन वैल्यूज ऑफ sum of eigenvalues of a cube minus a cube and sum of the eigenvalues of -3 square. Simple. So you can sum of the eigenvalues of a cube and sum of the eigenvalues of -3 square. दोनों का आप सम कर दो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में. तो 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2. -1 - 3 कितना हो जाएगा? -4 एंड 27 - 7 का सम कर दो आप.
इनका सम करोगे तो कितना आएगा -2 एंड -4 -6 सम कर दिए तो -6 इतना सब करना था आपको। एक सिंपली प्रॉपर्टीज में लिखी कि ए का आइगन वैल्यू अगर के लेमडा है तो एट द पावर ऑफ के का कितना होगा लेमडा टू पावर के। मैंने ए क्यूब की आइगन वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है, these are the आइगन वैल्यूज ऑफ एट पावर के एंड फिर मैंने -3 स्क्वायर की आइगन वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों का सम कर दिया, दोनों का सम हो रहा है ना, दोनों का सम कर दिया मैंने। तो दोनों का सम करके ट्रेस निकालना है, ट्रेस का मतलब क्या होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, दोनों का इन सबका सम कर दो, तो सम करके आंसर कितना आ गया। तो दिस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर इज -। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी यूज में आएगी। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? नो डाउट्स। सेम प्रॉपर्टी बात बार इन होगी, तो इस तरह के लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आप कर सकते हो। दिस क्वेश्चन asked in GATE 2014 implementation branch. For the given matrix A, satisfy the given equation, the eigenvalues are. He's asking about the eigenvalues of A. So A and this particular matrix equal to this particular matrix. देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसने थोड़ा सा घुमा रखा है। इसके बारे में पूछ रहा है, आइगन वैल्यूज के बारे में पूछ रहा है। आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे वो आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता है, और इसने एक इक्वेशन दे दी है इस तरह की। अब आप बताओ कैसे सोल्व करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें आपको एक चीज ढूंढनी है, वो अगर आपने पता कर ली तो फिर क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के होते हैं। तो यू आप जो ऑब्जर्वेशन आपकी पावर है वो थोड़ा इम्प्रूव कीजिए कि आप क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे, किसी को आइडिया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। आपको कुछ इस मैट्रिक्स में कुछ दिख रहा है डिफरेंस? सर कंपेयर करेंगे। इस मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? यस अगर मैं रोज हाँ बताओ, कोई बता सकते हैं? अगर मैं इस रो को और इस रो को चेंज कर दूं तो क्या ये मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी जो मैट्रिक्स दे रही है? यस अगर मैं इस रो को चेंज कर दूं तो सेम मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी। इतना सा फाइंड करना था फिर, अगर इतना सा फाइंड कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव सेम आ जाएगा। इफ यू ट्रांसफॉर्म द टू इंटरचेंज द टू रोज देन देयर विल बी नेगेटिव साइन। So this matrix are same, so you will cancel out this matrix. So it is cancel out this matrix and this value is 1. So what is the, suppose this matrix is B, right? So I can apply minus A matrix into B matrix equal to B matrix. So cancel out the B matrix. What is the A matrix equal to minus? कैंसल आउट करूंगा तो 1 नहीं आएगा, INT मैट्रिक्स आएगा। इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, राइट? अब इसका अगर INT मैट्रिक्स का अगर मैं निकालूं डिटरमिनेंट कितना होगा 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ, आपको पता होना चाहिए किसी भी INT मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट तो 1 होगा, इसका मतलब -n/1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया -1, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू λ2 λ3 इक्वल टू -1, तीनों का प्रोडक्ट ऑफ -1 होना चाहिए। तो ये वाला आंसर कैंसिल हो गया है, 0 आ रहा है। ये आंसर कैंसिल हो गया, प्रोडक्ट करूंगी भी 0 आ रहा है। इसका कैंसिल करूंगा तो -1 आ रहा है, और इसका भी -1 आ रहा है। इसका मतलब 2 ऑप्शन यहाँ पे, इसका -1 आ रहा है, +1 आ रहा है, +1 आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास, ये कॉमन है, आंसर क्या हो गया C। तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना ऑब्जर्व कर लिया आपने कि ये मैट्रिक्स को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, इंटरचेंज कर दिया मैंने, तो मैट्रिक्स क्या आ गया, INT मैट्रिक्स आ गया। तो आपको पता है कि INT मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट 1 होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A को -1। प्रॉपर्टी यूज में ली कि प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज -1। ये कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में यूज आ रहा है। यहाँ पर देख लो आप कि किस में आपको -1 प्रोडक्ट दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो इस वाले में भी, तो आप अगेन एक और चीज़ आप चेक कर सकते हो। क्या चेक कर सकते हो, अगर मान लो आपको डाउट हो रहा है कि क्वेश्चन में आंसर ये सही नहीं है, तो दूसरा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट ऑफ -1 से आप कैंसिल हो गए, दूसरे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी करो। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है?
जो क्वेश्चन वो सिंपल सा था, इसको फिर थोड़ा सा बेसिस पे यहाँ पे घुमा इतना तक किया क्वेश्चन। If the eigenvalues of this particular matrix M is given 15, 3 और 0, that means lambda 1, lambda 2, lambda 3 are given. तो मतलब आपको क्या गिवन है, lambda 2, lambda 3 क्या गिवन है, 15, 3 और 0. M matrix is given and the value of the determinant of the matrix. आपको determinant of A matrix पूछा है. इसका आंसर तो आप इजीली कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? ये तो आप कर सकते हो. क्या आंसर आएगा इसका? yes. अभी भी नहीं पता पड़ रहा है. यहाँ पर मैंने अभी तक टोटल 8 से 9 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं. 9 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज में हुई. अब फिर भी आप नहीं बता पा रहे हो, दैट मीन्स आप या तो क्लास अटेंड करने में ध्यान नहीं लगा रहे हो या फिर आपको करने में. 9 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज में लिया है. पिछले क्वेश्चन में लिया है मैंने प्रॉपर्टी, इसलिए जस्ट पिछले अभी 10 सेकंड पहले मैंने आपको बताया. और जसवंत कह रहा ऑप्शन सी होगा. फिर क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना. डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू. क्या आपको आइगन वैल्यू दे, लेकिन प्रोडक्ट क्या होगा, 15 इंटू 3 इंटू 0, आंसर क्या होगा 0. इतना सा करना है. ये सिर्फ 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा का है नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ p such that the vector 1 2 3 is an eigenvector of the matrix. अब आपको आइगन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स में डिस्कस हुआ और मैंने कंट्रोल सिस्टम बताया. आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया. आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं दोबारा यहाँ बताया था. इफ एनी मैट्रिक्स इज A is given, then if you find lambda I minus A matrix is equal to 0, if you find the determinant of this particular matrix, then you will find the eigenvalues lambda 1, lambda 2, lambda 3 depending upon the order of this particular matrix. The order is n cross n, the number of eigenvalues are n, right? These are the eigenvalues. And if you will find the eigenvector, so lambda I minus A in this particular matrix, you will put lambda I minus A into x equal to 0. A particular x represent the eigenvector and number of eigenvector depending upon the question. That is nothing fixed. eigenvector कितने भी हो सकते हैं, ठीक है. And this particular x is the eigenvector. और यहाँ पर lambda 1, lambda 2, lambda 3 आप पुट करोगे तो आपको डिफरेंट eigenvectors मिलेंगे, राइट. एंड इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं lambda x equal to A, right. So there are two forms representing for the eigenvector, lambda x equal to ax, और second form is the lambda I minus A into x equal to 0. तो ये कॉन्सेप्ट जो है कंट्रोल सिस्टम में डिस्कस हुआ है और आपके मैथमेटिक्स में डिस्कस हुआ है. तो दिस x रिप्रेजेंट है eigenvector. अब ये पूछ रखा है इसमें कि द वैल्यू ऑफ p such that the vector is a eigenvector, राइट. अब इसके 2-3 मेथड हो सकते हैं. तो पहला मेथड तो ये कि आप लेमडा आई माइनस मैट्रिक्स को मैं ए मान लेता हूँ. तो पहले तो आप क्या करो, लेमडा ए माइनस ए फाइंड आउट करो, वैल्यू निकालो, पुट करो, ठीक है. बट यहाँ पर p दे रखा है तो p के फॉर्म में आएगा. तो हाउ वी विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, हाउ विल कैलकुलेट द आइगनवेक्टर. तो अब आप कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, इसका कोई आइडिया है? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. इसने बोला है कि कोई आइगन वेक्टर आपको पहले दे दिया. इसने ये नहीं बोला है कि आइगन वेक्टर आप फाइंड करो. इसने बोला आइगन वेक्टर ये है, आप ले लो. अब उसमें एक आपको मैट्रिक्स भी दे दी, बट मैट्रिक्स में पी की वैल्यूज नहीं थी. ये पूछ रहा कि पी वैल्यूज क्या होगी अगर पी वैल्यू से अगर ये आइगन वेक्टर आता है. आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया है, कॉन्सेप्ट समझा दिया है. अब कोई बता सकता है क्वेश्चन को करेगी कैसे? ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके ऑलरेडी, कंट्रोल सिस्टम में भी मेथड. माइक अनम्यूट करके बता सकते हो कोई? कोई भी नहीं बताएगा. चलो हम बताएंगे.
इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में ये वाला इक्वेशन आप ट्राई कर सकते हो, लैम्डा एक्स इक्वल टू ए, राइट। तो यहाँ पर आप लैम्डा एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, ये वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं एक्स मान लेता हूँ, मैट्रिक्स को मैं ए मान लेता हूँ, राइट। तो लैम्डा इंटू एक्स, एक्स वेक्टर कितना है मेरे पास, 1 2 3, राइट। लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 4 p 14 1 2 minus 4 and 2 1 of x into x, a into x और x में पास क्या गिवन है, x is 1 2 and 3, ठीक। आप सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, लैम्डा इक्वल टू 4 को 1 से किया 4, 2 को 1 से किया 2, तो 4 प्लस 2 प्लस 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 6 प्लस 2 8 प्लस 4 की वैल्यू जा गई यहाँ पर, लैम्डा की वैल्यू 12। अब आपको पी की वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दो, 2 इंटू लेमडा इक्वल टू पी इंटू एन पी, 2 इंटू 2 4 प्लस 3। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन आ गई पी प्लस 7 इक्वल टू 2 इंटू लेमडा इक्वल 12। तो पी कितना आ गया, 24 माइनस 7 कितना आ गया, 70। तो आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आंसर जाएगा सही। तो आपने कौन सी इक्वेशन यूज में ली है, ये वाली। ये आपको यहाँ पे पी की वैल्यू नहीं पता था, आपको फाइंड करना है, आपने सिंपली ये क्वेश्चन यूज में ली और यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, आप रेस्पॉन्ड करा करो, रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। जितेंद्र, नीलेश, जसवंत, आयुष, तन्मय, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन asked in 8/2015 electrical cards, it is conducted by IIT Kanpur, and this question is very typical question at this time। ये क्वेश्चन जो था वो टाइम टेकिंग था, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बट आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आप इजीली आप कर सकते हो। इसने क्या पूछा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सच दैट मैट्रिक्स हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल आइगन वेक्टर। तो आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो कभी भी आपको कोई पूछता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का मतलब है वो वेक्टर किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर डिपेंड नहीं करो, मतलब उनकी आर्बिट्री वैल्यू जो है आपको पहले पता हो। जैसे मान लो कि जो वैल्यू था, जो वेक्टर था, इसी तरह लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, वो किसी वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। These are the linearly independent eigenvectors, right? मतलब ये रियल की बात कर रहे हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर दे तो उसके लिए कंडीशन होती है, किसी को पता है, ये मैथमेटिक्स में आपको ऑलरेडी करा चुके हैं सर, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि को बता, व्हेन ऑफ फॉर एनी पर्टिकुलर मैट्रिक्स P linearly eigen vector means for this particular matrix determinant is equal to 0। Sorry, lambda I minus a equal to 0, lambda I minus a equal to 0। ये आपको पता है, जस्ट मैंने आपको अभी बताया भी है, पता नहीं है, ओके ठीक है। तो lambda माइनस ए आई इक्वल टू 0 आपको फाइंड करना है। तो lambda I माइनस ए यहाँ पर अपन फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट आई विल फाइंड lambda माइनस आई माइनस ए। तो लेमडा आई माइनस ए फाइंड करेंगे, तो लेमडा इन जो एंटी मैट्रिक्स, तो एंटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर आपको ए माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा प्लस 3, राइट, एंड 0 एंड माइनस, ये माइनस बाद में लग रहा है, दैट इज माइनस ऑफ -2, दैट इज प्लस 2, दैट -1 लेमडा प्लस 1 एंड 0 0 माइनस ए एंड लेमडा प्लस। यहाँ तक किसी को डाउट है मैंने कैसे फाइंड किया है। लेमडा इंटू एंटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 3, राइट। उसके बाद में इसको 0 के इक्वेट करना है, राइट, एंड यू विल फाइंड द इक्वेशन। मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा प्लस 6
प्लस 2a इक्वल टू 0। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। इसमें किसकी क्वेश्चन आई है? लैम्डा। अब यहाँ पे क्या पूछा है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। तो किसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको? ए की। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू? if the function of a in terms of other variable, then you differentiate of that particular function with respect to that variable equal to 0, right? तो मुझे क्या चाहिए? फंक्शन ऑफ ए चाहिए। okay? तो फंक्शन ऑफ ए फाइंड करने के लिए इसको रिस्पेक्ट में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा? लैम्डा के रिस्पेक्ट में। तो किसके रिस्पेक्ट कर दूंगा? 0 के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा। मुझे पता नहीं है मैक्सिमम मिलेगा मिनिमम मिलेगा। अगर आपके पास इसका डबल डिफरेंशिएशन है तो लेस देन 0 होता है तो आपका मैक्सिमम मिलता है। अगर आपके पास जो डबल डिफरेंशिएशन अगर ग्रेटर देन है तो आपको मिनिमम मिलता है। तो डिपेंड करता है कि आपका जो डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू है कितनी है। तो फर्स्ट यू विल फाइंड द फंक्शन ऑफ ए। तो फंक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा? ए इक्वल टू -1/2 लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस। इसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो फॉर द मैक्सिमम वैल्यू वी कैन डिफरेंशिएट दिस पर्टिकुलर फंक्शन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वालिटी की इक्वेशन है। इक्वालिटी इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे आपके पास। लैम्डा इक्वल टू -2 प्लस -1/√3। Having studied the Rajariya method, can easily find the root. Okay? अब लैम्डा इक्वल टू -2 प्लस -1/√3 आ रहा है, तो यहाँ पर दो रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको किसी पर भी मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। okay? तो आपको क्या करना है? एक वैल्यू पर आपको फाइंड करना है वैल्यू। तो लैम्डा इक्वल टू -2 प्लस 1/√3 या -2 -1/√3। तो अगर आप ए की लैम्डा की वैल्यू -2 प्लस 1/√3 पर फाइंड करोगे तो आपको तो डबल डिफरेंशिएशन है, तो डबल डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर लेते हैं। a/b डबल डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 6 लैम्डा प्लस 2। तो इसमें आप अगर एक लैम्डा की वैल्यू अपलोड करोगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू पर ये जो आपका डबल डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू पर मैक्सिमम मिलेगा तो आपको क्या करना है? ये लैम्डा की वैल्यू किस पे पुट करनी है? इस पर्टिकुलर इक्वेशन। आपको क्या फाइंड होगा? ए फाइंड होगा। ये इसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए दैट ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा दैट इज मैक्सिमम, राइट? So you can put this particular value in a in this equation, question number 1. They will find the a. Okay? इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो या फिर आप पुट कर सकते हो बाय यूजिंग कैलकुलेटर। यहाँ पर a की वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 1/3√3। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो। मैंने आपको मेथड बता दिया है, यहाँ पर इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पर लेफ्ट कर रहा हूँ। अब ये अटेंडेंस नहीं है, अटेंडेंस आप लेनी है।